નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો, પાઠ 3 સમજદાર નાની, પેજ નંબર 15. આપણે હિન્દીમાં ભાગ 1 અને 2માં આ પાઠનો અભ્યાસ કરેલો. આજે આપણે પાઠ 3નો આગળનો અભ્યાસ છે ભાગ 3માં કરીશું. કે આ કહાનીમાં સાહિત્ય પ્રકાર કહાની છે, વાર્તા છે. કે આ કહાનીમાં આપણે શું સમજ્યા તો કે सबका स्वभाव एक जैसा नहीं होता. अच्छे स्वभाव वाले लोग हमेशा अच्छे काम करते हैं, वे दूसरों की भलाई करते हैं. बुरे स्वभाव वाले लोग बुरे काम करते हैं, जो उनका भला करते हैं उनके साथ भी वे बुरा व्यवहार करते हैं. हमें किसी भी स्थिति में किसी का बुरा नहीं करना चाहिए. આ કહાનીમાં, આ વાર્તામાં આપણને એ સમજાવવામાં આવેલું કે નાની બતક છે એ વીછીને બચાવે છે, છતાં તે તેને ડંખ મારે છે. પણ જ્યારે તેની માતાને કહે છે ત્યારે તેની માતા કહે છે કે વીછી છે એનો આ સ્વભાવનો એને આદત છે, એ પોતાના સ્વભાવનો એની આદતનો ગુલામ હોય છે. એ તું ગમે તેટલી વાર તું એને બચાવીશ, એ તને ડંખ મારશે. ત્યારે નાની બતક તેની માતાને કહે છે કે હું એનો આ સ્વભાવ છોડાવીને જ રહીશ. કેટલાક દિવસ પછી ફરીવાર વીછી છે એ પાણીના પ્રવાહમાં પડી જાય છે. મૃત્યુને સામે જોઈને એને નાની બતકની યાદ આવી જાય છે. એટલે એ તેને બોલાવવા લાગે છે અને નાની બતક પણ આ વીછીનો અવાજ સાંભળીને એ ત્યાં આવી જાય છે. પણ એકાએક એને વિચાર આવે છે કે મારે આને શા માટે બચાવવો જોઈએ. ત્યારે એને વિનંતી કરે છે એટલે તેનું વિચાર છે એ બદલાઈ જાય છે, એટલે તેને બચાવી લે છે. પણ બીજી વાર પણ એ ડંખ મારવા જાય છે ત્યારે નાની બતક કહે છે કે કેમ વીછીભાઈ, ઊભા કેમ રહી ગયા, ડંખ મારો. ત્યારે વીછી છે શરમાઈ ગયો અને કહેવા લાગ્યો કે બહેન, કે એક વાત મને કે મેં તો હંમેશા તારી સાથે વિશ્વાસઘાત જ કર્યો, પણ તે હંમેશા મારું સારું જ કર્યું છે, આવું કેમ. ત્યારે નાની બતક કહે છે કે મારો સ્વભાવ છે એ સારું કરવાનો છે અને તારો સ્વભાવ છે એ તું બીજાનું ખરાબ કરસ, બીજાને ડંખ મારસ. એટલે કે મારો જે સારો સ્વભાવ છે એ હું શું કામ છોડી દઉં, કે હું તો જે સંકટમાં પડેલા હશે, મુસીબતમાં હશે, એને હું વારંવાર બચાવતી જ રહીશ. તારું કામ ડંખ મારવાનું છે તો તું ડંખ મારતો રહેજે, અને જોઉં છું આપણા બંનેમાંથી કોણ જીતે છે. ત્યારે વીછી કહે છે કે બહેન, તું જીતી ગઈ. આજ પછી હું ક્યારેય પણ નિર્દોષ જીવને ડંખ નહીં મારું. આ સાંભળીને નાની બતક છે ખુશ થઈ ગઈ અને નદીમાં ચાલી ગઈ. તેની માતાને એ પૂછ્યું આજે પાછું ક્યાં મોડું થયું. ત્યારે તે કહે છે, ત્યારે તેની માતા કહે છે કે જે સારા સ્વભાવવાળા લોકો છે એ વારંવાર સારું જ કરે છે અને જે ખરાબ લોકો છે એને સારા બનવાનો માર્ગ બતાવે છે. આ સાંભળીને નાની બતક ખૂબ જ ખુશ થઈને નાચવા લાગી. આ કહાનીના લેખક છે શંકર સુલતાનપુરી. ત્યાર પછી પેજ નંબર 17 પર આપણે અભ્યાસ અને સ્વાધ્યાયના પ્રશ્ન જોયા. ત્યાર પછી પેજ નંબર 18માં ઘટનાઓ કો ઉનકે સહી ક્રમ મેં લીખીએ, આ પણ તમે ભાગ 2માં પ્રશ્ન લખેલા. ત્યાર પછી પેજ નંબર 19 निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश के क्रम में लखिए. तो सौ प्रथम एवा शब्द लखवाना કે જે સ્વર હોય તેવો શબ્દ પહેલાં લેવાનો. તો આમાંથી
शब्द है बीछू, नदी, शैतानी, डंक अने मुसीबत शब्द है। तो सौ प्रथम स्वर नहीं एटले व्यंजन लेवानो, तो व्यंजन में सौ प्रथम कयो आवशे? डंक। त्यार पछी आवशे नदी, बीछू, मुसीबत अने शैतानी। पहलो शब्द डंक, नदी, बीछू, मुसीबत अने शैतानी। त्यार पछी प्रश्न नंबर 7, नीचे दिए गए चित्रों को देखकर 2-2 वाक्य लिखिए और कहानी बनाइए। तो विद्यार्थी मित्रों, आ कहानी हूँ अहींथी तमने कहूँ छुं, ए तमारे सांभळवानी छे। कबूतर और चींटी। तमे आ वार्ता छे घणीवार सांभळेली ज हशे, तो चालो सांभळवा माटे तैयार थई जाओ। आपणे आ कहानीनुं शीर्षक आपीशुं कबूतर और चींटी। एक नदी थी, उसके किनारे एक पेड़ था। पेड़ पर एक कबूतर रहता था। पेड़ के नीचे एक चींटी रहती थी। एक दिन कबूतर ने चींटी को नदी के पानी में डूबते हुए देखा। उसने फौरन एक पत्ता तोड़कर चींटी के पास फेंका। चींटी पानी से पत्ते पर आ गई और पत्ता बहते बहते किनारे आ गया। कबूतर ने नदी से पत्ता बाहर निकाला और चींटी की जान बचाई। उसने कबूतर को धन्यवाद दिया। एक दिन कबूतर पेड़ की डाल पर बैठा हुआ था। एक शिकारी ने उसे देखा और उसकी तरफ बंदूक का निशान साधा। चींटी ने यह देखा, उसने फौरन जाकर शिकारी के पाँव में काटा। शिकारी दर्द से चिल्लाया। उसकी आवाज़ सुनकर कबूतर उड़ गया। चींटी ने कबूतर की जान बचाई। कबूतर ने उसका आभार माना। तो आ वार्ता परथी आपणे ए सीख मळे के आपणे बीजानी मदद करवी जोईए, तो बीजा पण आपणी मदद करे छे। त्यार पछी पेज नंबर 20, नीचे दिए गए चित्र को देखकर बताइए कि इसके बाद क्या क्या हुआ होगा। आ चित्र छे एक्सिडंटनुं छे, एना पछी शुं थयुं हशे ते कहेवानुं छे अने અહીં जग्या आपेली छे एमां तमारे लखवानुं छे। चालो पेन्सिलथी लखजो। पेला चित्र जोवानुं। दरेक विद्यार्थी आ चित्र जोवे અને ત્યાર પછી હું અહીંથી બોલું છું એ તમારે વાક્ય અહીં લખવાના છે। ચાલો શરૂઆત કરીએ। પેન્સિલથી લખવાનું कि इस चित्र में 2 कारों और एक मोटरसाइकिल में हुई टक्कर दिखाई गई है। इस चित्र में 2 कारों और एक मोटरसाइकिल में हुई टक्कर दिखाई गई है। पास ही सड़क पर एम्बुलेंस 108 खड़ी है। पास ही सड़क पर एम्बुलेंस 108 खड़ी है। दुर्घटना में घायल लोगों को एम्बुलेंस द्वारा अस्पताल पहुंचाया होगा। कार में लगी आग को बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड को बुलाया होगा। पुलिस भी तुरंत आ गई होगी। उसने दुर्घटना संबंधी आगे की कार्यवाही की होगी। उसने
दुर्घटना संबंधी आगे की कार्यवाही की होगी। तो विद्यार्थी मित्रों तमे आ पेन्सिल थी लख्यु। त्यार पछी पेज नंबर 21 प्रश्न नंबर 9, निम्नलिखित वाक्यों में उचित विराम चिन्ह का प्रयोग करके वाक्य फिर से लिखिए। प्रश्न 9 विराम चिन्ह मूकवाना छे। पेलू छे कि बिच्छू बोला नन्ही बहन आज तुम जीत गई। बिच्छू बोला त्यां शुं आवशे? अल्प विराम आवशे। तो विद्यार्थी मित्रों तमारे त्यां अल्प विराम करवानुं छे। बिच्छू बोला पेन्सिलथी ज आमां ने आमां थई जशे, बीजी वार वाक्य लखवानुं नथी। त्यां ने त्यां बिच्छू बोला त्यां अल्प विराम। नन्ही बहन, बहन शब्द छे त्यां पण अल्प विराम। अने नानी बहन छे ए शब्द आगळ तमारे अवतरण चिन्ह मूकवाना छे। आज तुम जीत गई वाक्य पूरुं थई गयुं अने अवतरण चिन्ह पर पूरा करवाना त्यां। अहीं अल्पविराम, अहींया अवतरण चिन्ह, अहीं पण अल्पविराम, अहींया वाक्य पूरुं थई जाय एटले अवतरण चिन्ह आ रीते। त्यार पछी बीजुं छे, क्यों भाई तुमने मुझे डंक क्यों मारा? तो अहीं पण तमारे अवतरण चिन्ह करवानुं। क्यों भाई अहींया आवी रीते अवतरण चिन्ह, क्यों भाई अहींया अल्पविराम। तुमने मुझे डंक क्यों मारा? तो अहींया आवशे प्रश्नार्थ चिन्ह अने अवतरण चिन्ह पूरा। त्यार पछी त्रीजुं, बिच्छू भाई ठीठक क्यों गए? डंक मारो। तो अहीं पण बिच्छू भाई अहींया आगळ आवशे अवतरण चिन्ह, भाई शब्द छे त्यां अल्पविराम, ठीठक क्यों गए, गए आगळ प्रश्नार्थ चिन्ह, डंक मारो। अहींया वाक्य पूरुं करीने अवतरण चिन्ह पूरा करवाना। त्यार पछी चौथुं, भलाई करना मेरा स्वभाव है। तो भलाई करना मेरा स्वभाव है अहींया अवतरण चिन्ह आवशे। वाक्य पूरुं करीने अवतरण चिन्ह। त्यार पछी पांचमું वाक्य, बहन मुझे बचा लो। तो त्यां अवतरण चिन्ह, अल्पविराम आवशे बहन पासे, बचा लो वाक्य पूरुं करीने अवतरण चिन्ह पूरा करवाना। त्यार पछी प्रश्न नंबर 10, निम्नलिखित परिच्छेद को पढ़कर उसके नीचे दिए गए प्रश्न के उत्तर लिखिए। पेरेग्राफ वाँचवानो छे, तमारे पण पाठ्यमां ध्यान आपवानुं कि देवताओं का अभिवादन स्वीकार करने के पश्चात ब्रह्मा जी ने उनसे कुशल मंगल पूछा। इस पर इंद्र बोले, पितामह हम वृत्तासुर से त्रस्त हैं, अपनी प्राण रक्षा करना हमारे लिए कठिन हो रहा है। असुर न केवल हमसे अधिक बलवान है अपितु चतुर भी अधिक है। हम एक शस्त्र बनाते हैं तो वो 4 बना लेते हैं। हम उनसे पार नहीं पा सकते। कृपा कर वृत्तासुर के विनाश का कोई उपाय बताइए। तो प्रश्न आपेला छे एनो आपणे जवाब आ फकरामांथी शोधवानो छे। असुरों के बारे में इंद्र ने क्या कहा? तो असुरों के बारे में इंद्र ने कहा कि हम वृत्तासुर से भयभीत हैं। असुर बलवान तो है ही, संख्यावत चतुराई में भी हमसे अधिक है। उनसे पास हमसे 4 गुने शस्त्र है। देवता ब्रह्मा जी के पास क्यों गए? तेनो जवाब आवशे कि देवता वृत्तासुर के विनाश का उपाय पूछने के लिए ब्रह्मा जी के पास गए। त्यार पछी नीचे दिए हुए वर्णों से 5 शब्द बनाइए। भवन, भलाई, भगत,
ભગવાન ને ભજન, આ રીતે. ત્યાર પછી વ વર્ણ પરથી 5 શબ્દ કયા કયા તમે કોઈ પણ લખી શકો. વજન, વાનર, વેશ, વિદ્યા, વિકાસ. રસે રસ, રણ, રાગ, રીતિ, રોટી. નસે નગર, નાગ, નયન, નીર, નિયમ. ગસે ગણેશ, ગરુડ, ગીત, ગમલા અને ગાય. ત્યાર પછી ભાષા સજ્જતા. વિદ્યાર્થી મિત્રો, તમારે હું આ જે પેરેગ્રાફ વાંચું એમાં ઘાટા શબ્દ છે એના ઉપર તમારે ખાસ ધ્યાન આપવાનું છે. ચાચા, रामू ओ रामू चुपचाप क्यों बैठे हो, खेलोगे नहीं? रामू ने कहा, नहीं, मेरा मन खेलने में नहीं लगा, मैं बड़ा कलाकार बनना चाहता हूँ. चाचा ने कहा, अरे हाँ, तुम तो चित्रकारी सीख रहे थे ना? त्यार पछी आगळना पेज पर रामू ने कहा, हाँ, लेकिन वह काम मुझे पसंद नहीं आया. चाचा ने कहा, क्यों क्यों? रामू ने कहा, एक दिन मैंने डॉक्टर गोलीवाला की दीवार पर भैंस का चित्र बनाया था. उन्होंने माँ से मेरी शिकायत कर दी. चाचा ने कहा, अच्छा तो यह बात है. रामू ने कहा, चाचा जी, आप चित्रकार कैसे बन गए? હવે અહીં આપેલું છે કે इस वार्तालाप में रामू के स्थान पर मैं, तुम, मैंने और डॉक्टर गोलीवाला के स्थान पर उन्होंने तथा चाचा जी के स्थान पर आप प्रयुक्त हुए हैं, जो कि सर्वनाम शब्द है. इस प्रकार संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं. सर्वनाम कोने कहेवाय? तो कि नामनी जग्याए वपराता शब्दने सर्वनाम कहेवामां आवे छे. त्यार पछी पढ़िए और समझिए. आप कहाँ जा रहे हैं? दाल में कुछ पड़ा हुआ है, चलो हम स्कूल चले. मैं तो बहुत प्रतिभाशाली हूँ, आओ हम नदी पहाड़ खेलेंगे, उसे तो बस हंसना आता है. तुम्हें मेरी कविताएं अच्छी लगी? वह अपने आप खड़ा होने लगा है. उपयुक्त वाक्य में रेखांकित शब्द सर्वनाम है. वाक्यों में इन शब्दों का उपयोग संज्ञा के बदले हुआ है. नामनी जग्याए जेनो उपयोग करवामां आवे तेने सर्वनाम कहे छे. सर्वनाममां आ जेटला शब्द छे बधानो उपयोग करवामां आवे छे. અહીં ઘણા બધા શબ્દ આપેલા છે, મેં, હમ, મેરા, આ રીતે. ત્યાર પછી પેજ નંબર 23 कि कुछ संयुक्ताक्षर ऐसे हैं जिनका विश्लेषण हम कभी कभार गलत करते हैं. जैसे सिद्ध में द और ध जुड़े हुए हैं, फिर भी हम दोहरा ध समझते हैं. कि घणीवार एवुं बने कि आपणे ए शब्द छे એ આપણે ઘણીવાર ખોટા લખતા હોય છે. જે રીતે છે કે સિદ્ધ શબ્દ છે એમાં દ અને ધ બંને જોડેલા હોય છે, પણ આપણે લખીએ છીએ કેવી રીતે? બે ધ લખીએ, એક અડધો ધ અને આખો ધ, તો એ ખોટું છે. ऐसी गलती दूर करने के शुद्ध उच्चारण एवं शुद्ध लेखन हेतु यहाँ ऐसे संयुक्ताक्षर दिए गए हैं जिनका अध्ययन कीजिए. तो અહીં આપવામાં આવેલું છે ક અને શ થી ક્ષ બને, સ અને ર થી શ્ર, એ રીતે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે આ પાઠ અહીં પૂરો કરીએ છીએ. અસ્તુ. જય હિન્દ. વંદે માતરમ.